आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी की खास पेशकश, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि मंगलयान के पहुंचने से वैज्ञानिकों की जो उपलब्धियां रही वो देश के लिए असल में क्या मायने रखती है और इसका असर कितने लंबे अरसे तक रहेगा, क्या नई चीज़ें हम वहां से हासिल कर सकेंगे और कैसे अपने समाज के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने में ये अभियान सफल होगा। Right, and we are joined in by a panel of guests here. We are joined by Mr. B.S. Bhatia, who is the former director of DECU, and he's also been associated with ISRO. We are also joined in by Mr. R.P. Tandon, who is the professor at School of Physics and Astrophysics, Delhi University. We have with us Chandra Bhushan Devgan, who is the president of Space Foundation NGO. Also our in-house scientist TV Venkatesh is joining us from Bangalore. Coming on to our guests here in Delhi first, I'd like to ask Mr. Bhatia first this question. Now we are talking about this Mars Orbiter mission, but we also need to understand that there is MAVEN that is already there. So what kind of, if we look at the two missions vis-a-vis, what kind of achievements will the two, as far as data collection is concerned, what will the two achieve? MAVEN is a much more advanced mission. We were on a very preliminary mission using a PSLV launch vehicle to minimize our risk, and we put a very small payload satellite on it with small cameras. So our purposes are very limited, but still I think they are very significant in the sense that you are looking at the possibility. At the same time, अहमदाबाद से एक वैज्ञानिक हमारे साथ सवाल पूछने के लिए जुड़ रहे हैं। दिलीप भाटिया साहब हैं। जी दिलीप जी। यस, हेलो। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी कम्युनिटी ने आज ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं और किससे पूछना चाहते हैं? थैंक यू वेरी मच। Yes, I'm Dilip Bhatt. Yes, I will give the feedback to Bhatia Sahab and all my colleagues of ISRO, because having connected with ISRO for last 35 years at Space Application Center Ahmedabad as Group Director on Mechanical and Controller ISRO here at Ahmedabad, it's a fantastic coverage. One thing I would like to compliment to the RSTV for last 2 days I am observing. Thank you very much, sir. But it's an excellent coverage and motivating to the youngsters and people. I am getting phone calls from Jamnagar, from Gujarat and other places of amateur associations who are connected with astronomical events and astronomical associations, congratulating to the organization for this best effort and stupendous success. I would like to only add one piece of information for general viewers' awareness is, you know, we are all discussing about IITs and ISRO getting best manpower of science and technologies. Bhatia Sahab is there. He will understand and he will amplify further after I complete that there are a lot of pool of manpower, you know, who are ITI, machinists, technicians, who mechanical manufacturing of this hardware here at Ahmedabad. Not only in Ahmedabad workshop, but there are 16 to 18 private parties at Rajkot, Baroda, Bombay, Vallabh Vidyanagar and other places. So not only the ISRO, but this whole community of industrial interface is getting excited like anything, because they have manufactured this payload with less than 5 micron kind of a machining accuracy. And the people who have really manufactured their ITI tradesmen, they say like this, you know, you please, if you go to their heart, they say, we have touched this particular component, sir, this component is going to reach to Mangal. You know, the kind of their appreciation, the kind of their human factor getting motivated, that we are working on this mechanical hardware, aluminum hardware, this is going to reach to Mangalyaan. And today their dreams have been accomplished with the great success of organization of ISRO. I compliment each one of this team, each one of these project management people for this fantastic success, and particularly to RSTV for giving such a nice coverage and giving such an informative coverage
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलीप जी। हमें उम्मीद है कि आपकी प्रेरणा से हम भी कुछ आगे चलेंगे और आपके ये जो कथन है उसके जरिए जो तमाम लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वैज्ञानिक नहीं भी हैं, उनको भी आज बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। यही वो बात कह रहे थे कि चाहे वो मैकेनिकल सेक्टर से जुड़े हों, चाहे वो टेक्निकल सेक्टर से जुड़े हों, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़े हों, सब लोग जो इसरो के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हैं और इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो सब आज गर्व से सिर ऊंचा करके चल रहे हैं कि हमने भी इसमें कुछ योगदान दिया है। नहीं भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए, पुराने मित्र हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसरो के, आई थिंक हम इसरो से कभी अलग नहीं होते। जिन्होंने एक बार इसरो ज्वाइन किया है वो जिंदगी भर इसरो से एसोसिएट, मतलब जिंदगी के साथ भी है और रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद जितनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिटायर्ड ऑफिसर्स में हो रही है उतनी ही शायद जो एग्जिस्टिंग है उनके अंदर हो रही होगी। मैं भट्ट साहब से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, उन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के इन्वॉल्वमेंट की बात की। आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसरो के हर प्रोजेक्ट और हर क्षेत्र में, चाहे कम्युनिकेशन का हो, चाहे रिमोट सेंसिंग का हो, इसके जो आउटपुट्स हैं और ये साइंटिफिक डेटा है, दिस हैज़ टू मूव आउट टू ए लार्जर नंबर ऑफ एजेंसीज। साइंटिफिक डेटा है तो साइंटिफिक कम्युनिटी को जाएगा, रिमोट सेंसिंग डेटा है तो रिमोट सेंसिंग कम्युनिटी को जाएगा, और ये जैसे उन्होंने कहा प्राइवेट एजेंसीज के पास जाए, कम्युनिटीज़ के पास जाए जो इसको इस्तेमाल करें। तो जो इफ़ेक्ट हम चाहते हैं कि कम्युनिटीज़ पे इफ़ेक्ट हो, हमारी सोच पे इफ़ेक्ट हो, ये तभी होगा जब ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारी इसरो अकेले तो ये कर नहीं पाएगी। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है और मैं चंद्रभूषण जी से इस सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। चंद्रभूषण जी, ये बात सच है कि जितने ज्यादा लोगों को फायदा होगा इस तरह की वैज्ञानिक उपलब्धि का, उतने लोग इसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि फायदे के साथ साथ वो उसकी जो भावना है उसको भी समझे। दरअसल ये जो वैज्ञानिक उपलब्धि है वो ये भी साबित करती है कि कुछ भी इंसान के वश से दूर नहीं है। हम इम्पॉसिबल को भी अचीव कर सकते हैं, और हम अगर पूरी तरह से फुल प्रूफ तैयारी कर लें तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज अचीव कर सकते हैं। इसका मतलब सब कुछ किस्मत पे नहीं तय होता है, हमारी मेहनत पे तय होता है। क्या ये भावना हमारे समाज के अंदर लाने में ये उपलब्धि कामयाब होगी? बिल्कुल। अगर आप बात करें, जब मैं स्टूडेंट था तो 1976 में जब वाइकिंग पहली बारी मार्स के ऊपर लैंड किया था, तो उस समय सोचता था कि कहीं किसी समय पे भारत अपना एक यान जो है वो मंगल ग्रह तक लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। और वो देखिए, वो मेरे लाइफ टाइम में ही हो गया। और वो सिर्फ इसलिए हुआ कि जो हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे इंजीनियर्स हैं, उनकी कड़ी मेहनत और अपने ऊपर जो विश्वास है कि हाँ हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये भावना पूरे सोसाइटी में भी हम लोगों को एक्चुअली लेके जानी चाहिए कि हम लोग, जैसे आपने बोला कि सब कुछ किस्मत पे छोड़ दें कि चलो ये तो होना था, ये अपने आप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स में स्पेशली हम लोग जैसे काम करते हैं कि उनमें साइंटिफिक टेम्पर एक जगाते हैं, ताकि वो लोग क्वेश्चन करें साइंस के बारे में, ये चीज़ क्यों होती है और कैसे होती है। और वो चीज़ों को अगर इकट्ठा करके करेंगे तो अपने आप में ये एक भावना आएगी कि हम लोगों को। चंद्रभूषण जी, एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, बहुत बचपन में रामायण एक सीरियल आया करता था और हम देखते थे घरों में टीवी की पूजा की जाती थी, आरती की जाती थी। टेलीविजन जो एक वैज्ञानिक उपलब्धि का नमूना हो सकता है, उसकी हम आरती करते थे और ये सोचते थे कि इस पे जो रामायण आ रहा है वो सचमुच रामायण की असली कहानी है। तो उस भ्रांति को, उस अंधविश्वास को क्या ये अचीवमेंट दूर कर पाएगा? बिल्कुल दूर कर पाएगा, क्योंकि अगर इसको हम लोग देखें कि यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर एक यान जिसका साइज एक कार के बराबर है, उसको हम लोग एग्जैक्ट एक मूवमेंट पे, जब हम लोगों ने बोला कि वो इतने बज के इतने मिनट पे फायर करके ऑर्बिट में जाएगा, तो वो सारे का सारा साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ, ना कि हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट के पहले जाके वहाँ पूजा पाठ करते हो फिर उसको लॉन्च करें। तो मेरे हिसाब से मेहनत और जो हम लोगों ने ज्ञान अपने बड़ों से लिया उसको आगे बढ़ाना, ये सब चीज़ें अगर कंबाइन कर देंगे तो अपने आप में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। जी टंडन साहब, मैं आपसे वैज्ञानिक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये सवाल नहीं पूछना चाहती हूँ जो आप दोनों से पूछा। फिजिक्स के लिहाज से इस कामयाबी के क्या मतलब हैं? देखिए, इस कामयाबी को मैं दो शब्दों में कह सकता हूँ, दिस इज अ वैलिडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। जैसे डॉक्टर साहब ने इन्होंने भी कहा,
हम मैवन से बहुत पीछे हैं। और हमने जो किया है, मैं ये समझता हूँ कि जैसा बेस कैंप होता है, बेस कैंप हिमालय जाने के लिए, तो ये बेस कैंप है। वी हैव टू गो टू इंटर गैलेक्टिक प्लेसेस, तो उसके लिए ये वैलिडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे ज्यादा मैं फिलहाल इसे नहीं समझता। इमीडिएट गेन जो है वो, जैसा आपने कहा कि मोटिवेशन, बच्चों के लिए मोटिवेशन होगा, पर इमीडिएटली अगर आप कोई सोचे कि नहीं, मैं इमीडिएट गेन के बारे में नहीं जानना चाहती हूँ। जो फिजिक्स की को इससे हासिल होगा, इस अभियान से फिजिक्स के एज ए सब्जेक्ट फिजिक्स तो हर फील्ड में जो वैलिडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का कौन सा प्रिंसिपल जो है फिजिक्स का वहां नहीं लगता, हर तरह कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है? मैं बता रहा हूँ, चाहे आप उसको मैनूवर करते हैं, चाहे उसको आप चेंज करते हैं, स्पीड कैलकुलेटर, फिजिक्स तो इसमें टोटल फिजिक्स ही है। और जब इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि 1 मिली सेकेंड, जिसको 1000वां हिस्सा मिनट का कहते हैं, अगर उसमें भी गलत कैलकुलेशन हो जाए तो सारा प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है। जी चलिए, मैं बेंगलोर चलना चाहूंगी। हमारे साथ हालांकि राज्यसभा टीवी से सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग आपको इन हाउस वैज्ञानिक मानने लगे हैं। टीवी वेंकटेश्वरन ने लगातार विज्ञान से जुड़ी उपलब्धियां और ये जो मंगलयान के जो छोटे छोटे अभियान के जरिए किस तरह से वो यहाँ तक पहुंचा है, उसके बारे में हमें जानकारियां दी। आज आपके जरिए हमें ये पता चला कि पहला ऑर्बिटल डेटा जो है उसे भी रिकॉर्ड कर लिया गया है। निरीक्षण के बाद उसे कब तक धरती पर लाया जा सकेगा, कब तक दर्शकों को हम बता सकेंगे कि दरअसल इस डेटा में ये बातें सामने आई हैं, जो पिक्चर्स हैं या जो और दूसरे डेटा हैं, उससे क्या पता चल सकेगा? Yeah, see, one of the important thing that has been very clear is when the Mars orbital insertion took place, there is a lowest altitude at which the spacecraft will pass, which is a very, very important point. Earlier it used to be 720 kilometers, that is before September 22nd. With the correction that was made on September 22nd, they thought it will come to around 500 kilometers. Today it was actually 512 kilometers approximately. They are looking at it, but 512 kilometers, which means that it's like hitting the bullseye. You know, so this will give a very desired orbital path around Mars. Now what they are doing is, they are watching the path of the Mars orbiter. They will have to correct position some 3-4 points and then plot the path. So from that you can estimate the orbital. 2-3 groups are working, so they are collecting and pooling the data, and then they are going to process it, and then ISRO sources say that by today evening we would be able to announce the correct orbital path that we would get. But the insertion point being 512 kilometer is in some sense a very good news. जी, तो आप ये बता रहे हैं कि 512 किलोमीटर further they have also taken. Yes sir. Yeah, see, further they have also taken few snapshots and the data has been received on Earth. It is under processing, and it will take some time before they can make it into a intelligible photograph that you and I can see and understand. That they are saying that maybe today evening or by tomorrow they will release it. Right, but also Venkatesh, the fact is that the enormous data that this mission will be sending in about 6 months, obviously it will take a lot of time to actually decipher it and understand it, because we understand that even data from Chandrayaan-1, even that was a huge amount of data, and the scientists had really obviously had to take a lot of time to decipher it and to understand it deeply. Yeah, see, from Chandrayaan-1 mission, we got something like about 6 terabyte of data which is available in the data center of ISRO. All data has not been analyzed to the finest and final extent. There are some preliminary results that we have got, there are some confirmed results we have got on some issues, but there are a lot more data that needs to be analyzed, that will be taken by scientists and then it will be done. The data collection is one part of the science. Further analysis and verification and then examining it is the other part which the scientists in not part of ISRO but from other departments and other agencies would now get involved and do. They are getting involved and doing. Similarly, the data collection from Mars Orbiter mission in the 6 months would also take time for the complete analysis. Perhaps the data would be used for next, let's say, maybe 3-4 years. It's not as if that you see data today and then you make some assumption tomorrow.
we may be looking at the long-term data and then trying to come out with some idea in maybe next 2-3 years. तो हो सकता है कि हम शाम तक या हो सकता है कल परसों तक हमें डेटा एनालिसिस करके कुछ नई जानकारियां, कुछ नए तथ्य वैज्ञानिक बता पाएं इसरो के। लेकिन उसके बीच में जो इस समय इसरो की तैयारियों के बारे में हम बात कर रहे थे या इसरो के नेक्स्ट मिशन के बारे में हम बात कर रहे थे, वो क्या हो सकते हैं? देखिए, हमारे मिशन जो बिल्कुल क्लियर हैं। फॉर एग्जांपल 2017 तक इसरो जो है वो एक रोबोटिक भेजना चाहता है, और जैसा कि अभी क्यूरियोसिटी गया हुआ है तो उसी लाइन पे 2020 तक मेरा ख्याल मैन 2017 तक रोबोटिक की तैयारी है, क्योंकि अगर 2017 में भेजना है तो अब सिर्फ 3 साल रह गए। हाँ, 3 साल है, पर हमारे पास अब उसकी तैयारी साथ साथ चल रही है और 2020 तक मैन मिशन की तैयारी है। तो बट इनमें कुछ आगे पीछे रद्दोबदल हो सकती है क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बट नॉर्मली इनका जो माइलस्टोन है वो 2017-2020 है। जी, टीवी क्या आप इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि इसरो ने इस बात की तैयारी कर ली है कि 2017 तक वो रोबोटिक मिशन मार्स पे भेज सके? Mars ka they have not planned any Mars 2 mission, but Moon ka Moon 2 mission, that is Chandrayaan 2, is on the cards. It's working along with the Russian Space Agency. One rover is proposed to be landed on the surface of Moon. The construction of rover and the payload that should go in the rover are under construction and test. It will take time. I mean, it should not fail after it goes to Moon. So it takes time to ensure that everything is fit for flight. You know, that work is going on. The second most important work that ISRO is going to embark is AstroSat. It's going to be India's first astronomy satellite, which will be studying the sky in 5 wavelengths. You know, it will be a multi-wavelength satellite. And third, a mission called Aditya to study sun. These 3 projects are right on the table, and missions have started. Payloads have been constructed. The satellite is in various stages of construction. जी, मैंने देखा टीवी आपने कई सारे वैज्ञानिकों से इसरो के बातचीत की, लेकिन क्या आपको मौका मिला इसरो चेयरमैन से बातचीत करने का? कोई हाल फिलहाल आने वाले 1-2 घंटे में उनकी तरफ से कोई बयान आने जा रहा है इस मिशन की सफलता के बारे में? Actually, ISRO chairman was not able to interact with the press in the place because he had to leave with Prime Minister, and also there is going to be a crucial meeting of important people to look at the orbital data and then work out the orbits, those kind of programs they have kept for the evening this time. So we could not meet, and then ISRO chairman perhaps might give a statement sometime later in the day. That's what we come to know. संभव है कि नए डेटा के साथ इसरो चेयरमैन मीडिया के से इंटरैक्ट करें। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही ये मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल चलते हैं दिल्ली प्लानिटेरियम में, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता टीपू। मंगलयान का ऐतिहासिक मिलन लाल ग्रह यानी मंगल से होने के बाद यहाँ नेहरू प्लानिटेरियम में काफ़ी उत्साह का माहौल है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल GS रौतेला जी। आइए इनसे हम बात करते हैं, कुछ इनके इस पहलू पे बात करते हैं कि सर, ये जो मिशन मार्स सक्सेसफुल हुआ है, तो इसमें आपकी निगाह में कितना बड़ा अचीवमेंट है सर ये? सबसे पहले मैं देशवासियों को और विशेषकर अंतरिक्ष विभाग के वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। ये ऐसा मिशन था जो बहुत कठिन था और भारत ने इसको पहली बार में करके दिखाया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के वैज्ञानिकों के लिए। और इससे पहले जापान और चाइना ने भी कोशिश की थी और वो पहले प्रयास में असफल रहे थे। तो मैं कहूँगा कि देश ने अपनी तकनीकी और विज्ञान की जो प्रतिबद्धता और जो उसकी सक्षमता दिखाई है वो सराहनीय है। तो और देश को इस तकनीकी विकास से जो लाभ मिलेंगे वो देश के भले के लिए, देश की उन्नति के लिए बहुत काम आएंगे। सर, इंडियन स्पेस प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल साइंस सेंटर की तरफ से इस मिशन के अचीवमेंट के बाद आप इसकी पब्लिसिटी के लिए क्या प्लान है आपका भविष्य में इसका?
जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हमने पहले ही आज लोगों की जानकारी के लिए इस मिशन के बारे में कई तथ्य यहाँ पर रखे हैं और आज सुबह से ही सैकड़ों बच्चे आके इसको देख के गए हैं। और ये तो इसके अलावा अभी आगे के महीनों में हम वैज्ञानिकों के द्वारा बच्चों के लिए और लोगों के लिए व्याख्यानों का आयोजन करेंगे, एग्जीबिशन करेंगे और बच्चों को विशेषकर इस यान के बारे में या इस मिशन के बारे में लेख लिखने के लिए उनको प्रेरित करेंगे ताकि उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी और उत्सुकता और उनका मोटिवेशन हो। और हमें देश में अच्छे वैज्ञानिक और अच्छे इंजीनियरों की ज़रूरत है। आशा करते हैं कि इससे लोगों को बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि इस क्षेत्र में आके काम करें। सर, चूंकि आप वैज्ञानिक हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, तो अगर हम अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट की बात करेंगे तो उन्होंने जिक्र किया था कि 80 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं जो बमुश्किल अपनी रोजी रोटी का बसर कर पाते हैं। तो अगर हम विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करेंगे तो हालांकि और देशों की तुलना में बहुत कम पैसे में ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की है कि इन्होंने ये ख्याति अर्जित की, उपलब्धि अर्जित की। तो इस क्षेत्र में पैसा लगाना मतलब कहाँ तक आप इसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, मिशन का 450 करोड़ का जो खर्चा, लगभग 450 करोड़ का खर्चा, अगर आप इसके लाभ जो होने जाएंगे भविष्य में उसके साथ तुलना करेंगे, ये खर्चा कुछ भी नहीं है। तो इससे जो देश को तकनीकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डीजी साहब का मानना है कि हम नए प्रोग्राम्स और परियोजनाओं के जरिए साइंस के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करते रहेंगे। स्टूडियो धन्यवाद टीपू के साथ जो वैज्ञानिक थे वो कह रहे थे कि लोगों में अवेयरनेस और बच्चों में अवेयरनेस जगाने का काम वो करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चों में अवेयरनेस जगाने के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए? बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसको पाठ्यक्रम और ये प्रोग्राम देखने के बाद आज का प्रोग्राम काफ़ी स्टूडेंट मोटिवेट होंगे कि इसरो ज्वाइन करने के लिए। मैं सुबह से कई लोगों से बात कर चुका हूँ और ये एक बहुत ही कारगुजारी होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें मोटिवेट। अच्छा, दूसरी बात मैं एक लाइटर साइड में कहना चाहता हूँ, काफ़ी लाखों हजारों लड़के लड़कियां जो है ना वो शादी से वंचित रह जाते हैं कि मंगल ग्रह है। तो अब उन्होंने देख लिया कि मंगल जैसा धरती है वैसा ही है। तो नहीं, मेरा ख्याल लड़के लड़कियां तो नहीं, लेकिन उनके माता पिता उनके ऊपर दबाव डालते हैं। माता पिता दबाव, तो ये भी एक भ्रांति है, ये भी मेरे ख्याल लोगों को समझना चाहिए। ये दूर हुआ होगा। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, प्रणव हैं। प्रणव, आप अपना सवाल पूछिए। First of all, good afternoon to everyone in the studio. And I'm going to congratulate each and every fellow Indian of mine to feel proud of one more achievement we have achieved. जी. Ma'am, I have two questions. My first question is this thing. The MAVEN project, NASA's MAVEN project was launched within this Mars orbital mission, within same time span. And the Mars orbital mission had to travel 10 times more distance than MAVEN project. Yes. With almost very less fuel in comparison to MAVEN project. So how this thing was achieved? I was reading somewhere that the fuel which has been which has been utilized by MOM is almost rupees 11 per liter, 11 per kilometer, rupees 11 per kilometer. So I want to ask how this thing was achieved, because the Mars orbital mission has landed on Mars within the same time. So and the second question is this thing: whatever is happening on Mars, we are going to get the pictures of this thing almost with some time delay. So वहाँ पे कुछ हो जाएगा and we'll get to know it after some time. So what all things is done? Only 12 minutes after you can get the news. But जो पहला वाला सवाल आपने पूछा था, मैं चाहती हूँ अगर टीवी वेंकटेश्वरन को ये आवाज मिल रही है तो आप उसका जवाब दें। Yeah, it's a very interesting question. Actually, the MAVEN was launched 2 weeks later than the MOM, but it reached 2 days earlier than the MOM. It's basically because the MAVEN was launched with Atlas rocket, which is about 10 times powerful than the PSLV rocket which launched the MOM. Because of that, what happened was that you could give the necessary impulse to the MAVEN much before the MOM. MOM used a very unique, let's say the innovative launch method called gravity assist. It used the gravity of Earth itself to escape from the gravity of Earth. You know, it was a very novel method which has not been tried earlier. People have used the gravity assist of other planets for navigation, but this is the first time that we use the gravity assist of Earth for escaping from Earth, you know, for launching into the deep space.
So it was very unique technology that ISRO has deployed in this particular, or rather unique launch maneuver that ISRO has deployed in this particular program. And second, as far as the fuel is concerned, it's not like, I mean, like he says, there is also a lot of Facebook and social media talk going on right now that don't talk about cost of MOM, because with 450 crores, the distance that we have crossed, that is 680 million kilometers, it's not even 11 rupee 50 paise per kilometer, less than your public transport, like auto or taxi. So ISRO has done well. That's a very interesting point, I think one looks at. The method of navigation for both MOM and MAVEN were completely different. जी, मुझे उम्मीद है कि प्रणव को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन एक कॉलर कुछ देर पहले हमसे और जुड़े थे टीवी, और वो ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि मैन मिशन भेजने के लिए क्या मार्स पर या मून पर कोई आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करके भेजा जा सकता है क्या? No, already both the moon and Mars have gravity, but its gravity is less than that of Earth, that's all. I mean, the gravity is there, so you won't fly off moon or you won't fly off Mars. But the point is that given today's technology, it may not be that much worthwhile to send humans to Mars at this point of time. Perhaps down the line, but at this point of time, automated missions, robo missions might be more fruitful, may yield more result for the money that you may be investing rather than a human mission. So right now nobody is planning in reality for sending a human mission to Mars at this point of time. People are preparing for it for a longer duration. जी, हमें उम्मीद है कि वैज्ञानिक सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक छोटे से सवाल के बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो रही है जैसा कि हमें बताया जा रहा है। लेकिन टीवी एक सवाल ज़रूर जानना चाहेंगे। इस मिशन को सफलता को हासिल हुए कुछ घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इस दौरान इसरो के अंदर क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा होगी कि इसरो के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, इसरो के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है? Actually, most of the engineers and scientists came there at morning 3 o'clock. They were able to leave only around 1 o'clock. So most likely they will be having their lunch and then taking some rest. Except a small group of people who may have to look at the orbital parameters and compute it. It has been a very long day. In fact, strenuous day. I mean, because it was a very tense day. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टीवी हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक लंबा दिन था, लेकिन सफलता का सुकून भी लोगों के चेहरों पर साफ था, और शायद इस सुकून के साथ आज का दिन लोग एंजॉय करना चाहते हों। लेकिन इस अचीवमेंट के साथ विज्ञान के क्षेत्र में हमने क्या हासिल किया? एक वक्त था जब हमने धरती के ऑर्बिट में तमाम तरह के सैटेलाइट्स भेजे, और उसके ज़रिए हमने देखा कि मोबाइल सेवा और एसटीडी सेवा हमने हासिल की, एटीएम की सेवा हमने हासिल की, टीवी कंप्यूटर की सेवा हमने हासिल की। ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं, चाहे वेदर और साइक्लोन के प्रेडिक्शंस हमने हासिल किए। ये जो आज मार्स पे हम पहुंचे हैं, मतलब अभी हमारा मार्स पे कदम हमारे उपग्रह का नहीं पड़ा है, लेकिन उसके ऑर्बिट में हम पहुंच चुके हैं। इसके ज़रिए हम लॉन्ग टर्म क्या सपने देख सकते हैं? मैं आपको बताऊं, हर एक मिशन का, हर एक सैटेलाइट का, हर एक मिशन का स्पेसिफिक एरिया और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम होता है। आपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जब हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन सिस्टम को बढ़ाना। हम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट करते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में, तो डेटा कलेक्ट करना, उसके ऊपर से एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह वगैरह। अभी एक माइक्रोवेव सैटेलाइट लॉन्च किया जो बादलों में भी छवियाँ ले सकता है। हम मीटियोरोलॉजिकल सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो हर एक मिशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये जो मार्स मिशन है, इसका साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसका एप्लीकेशन का कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इससे कुछ हमारे टेलीफोन्स में या इसमें कुछ इसकी एप्लीकेशन होगी। और उस सबसे बड़ी बात जो है वो मैं यहाँ देख रहा हूँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन डेटा एनालिसिस के बारे में। ये तो हमें डेटा देगा ही, और ये डेटा इट विल कीप गिविंग ओवर 6 months,
और इसका एनालिसिस कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन में होने वाला नहीं है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि डेटा एनालिसिस कैसे होता है। उससे पहले चलते हैं कोलकाता में बिरला तारामंडल के निदेशक डॉक्टर देवी प्रसाद द्वारी का मानना है कि मंगलयान की सफलता से अंतरिक्ष के दूसरे मिशन में मदद मिलेगी। हमारे संवाददाता श्याम सुंदर ने उनसे खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। आज भी सुबह 4 बजे से बिरला प्लानिटोरियम के डायरेक्टर देवी प्रसाद द्वारी सुबह 4 बजे से जगे हुए, लगातार एक एक गतिविधि पर, एक एक प्रक्रिया पर उनकी बारीक नज़र है। और अब जबकि सफलता के साथ ये मिशन स्थापित हो चुका है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। द्वारी साहब, पहली रिएक्शन आपके? इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन, क्योंकि हम हर भारतवासी इस मुहूर्त में, ये हमारे लिए एक स्मरणीय घटना होकर रहेगा हमारा अगला जीवन में, क्योंकि this achievement that ISRO scientists has achieved, as you are telling everybody, this is really unthinkable for most of the world. But with the patience, with the responsibility, with their intellect and with their expertise, in 15 months' time, spending only 450 crore rupees, India has achieved a situation which no other country in the world has previously could achieve. लेकिन ये जो अचीवमेंट हुआ है और सबसे कम पैसे में पहली बार में भारत ने जिस तरह से इस मिशन को अचीव किया, आप इससे जो और इसरो के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जाहिर है उसमें बहुत मदद मिलेगी। हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि अगला साल में अभी मंगलयान 2 को 2017 में छोड़ा जाएगा। एस्ट्रोसैट जो 5 डिफरेंट वेवलेंथ बैंड्स में एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का बहुत सारे रिसर्च वर्क के हेल्प करेंगे। आदित्य बोल के हमारा जो सोलर मिशंस अभी कुछ साल से तैयार हो रहा है, इस सब को जो बूस्ट मिलेगा, दैट इज ट्रेमेंडस। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन केस ऑफ स्पेस साइंस इज गोइंग टू इंक्रीज विथ इंडिया। NASA has already declared a joint working committee for the Mangalyaan mission and Mars mission. Chinese scientists have agreed to collaborate with India. So I think the global scientific community has realized that India has arrived. आज दिन भर इसको लेकर यहाँ पर सेलिब्रेशंस का दौर चलता रहेगा, जिसको राज्यसभा टीवी लगातार आप तक पहुँचाएगा। जी, तो राज्यसभा टीवी की कोशिश थी कि अलग अलग जगहों से किस किस तरह का मूड है लोगों का और किस किस तरह से सेलिब्रेशन हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, उसे आप तक पहुंचा सकें अपने संवाददाताओं के जरिए। एक कॉलर हमारे साथ झारखंड गिरिडीह से जुड़ रहे हैं, आकाश फोन लाइन पर हैं। आकाश जी, हेलो जी, आप मैम, मेरा सवाल ये है। हेलो जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल द इसरो साइंटिस्ट जी। एंड सेकंड ये है, लाइक जैसे अमेरिका इतना इन्वेस्ट करता है ऑन स्पेस प्रोग्राम्स, क्या इंडिया की जो नई सरकार आई है हमारी मोदी जी की, उनको इस चीज में विशेष ध्यान देना चाहिए फॉर लाइक मेजर इन्वेस्टमेंट इन स्पेस प्रोग्राम्स? आप इसरो से जुड़े रहे हैं, हालांकि सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन आप क्योंकि इसरो से जुड़े रहे हैं, तो क्या इसरो की अपेक्षा होगी? भारत सरकारों ने, भारत में एक बहुत अच्छी बात रही है कि शुरू से ही सारी सरकारों ने इसको पूरा सहयोग दिया है। जितना बजट इसरो को ज़रूरी लगा है, इसरो ने जितना मांगा है, उस हिसाब से सरकार ने उनको दिया है। और इसरो ने कभी बजट की क्रंच नहीं फेस की है। हालांकि अभी जो सालाना बजट है वो तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए का बजट है। 6,000 करोड़ का $1 बिलियन टू बी प्रिसाइज। $1 बिलियन। 1 बिलियन डॉलर जी। तो वो कोई एक तो बहुत बड़ी रकम भी नहीं है, और दूसरा सरकार की तरफ से पूरा कोऑपरेशन है। और जैसा मोदी जी ने भी आज कहा, पहले भी पीएम्स ने कहा है कि अगर आप फेल होते हैं तब भी मेरा आपके साथ होना इतना जरूरी है। और जब पहला SLV फेल हुआ था, तब भी पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ और पार्लियामेंटेरियंस ने ये कहा कि आप फेल हुए वो बात भूल जाइए, आप अगला कब लॉन्च करने वाले हैं वो बताइए। तो इस किस्म का सपोर्ट और एनकरेजमेंट सारी गवर्नमेंट से मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेजेंट सरकार भी इसको उसी तरह से सपोर्ट करेगी। आकाश, आपको कुछ और भी सवाल पूछना है? आकाश से संपर्क टूट गया है, लेकिन चंद्रभूषण जी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? क्या भारत में अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है, अगर वैज्ञानिकों के इन तमाम प्रयोगों और खोजों को आगे बढ़ाना है, तो और ज़्यादा बढ़ चढ़कर सरकार को भी मदद करनी चाहिए? ज़रूर। ये एक्चुअली में दोनों तरफ का हम लोग बात करेंगे। सरकार को तो मदद करनी ही चाहिए,
जो लोग इस काम में जुटे हुए, सोसाइटी जो है वो अपने आप को एलिनेट करके कि ये तो सिर्फ एक तरह से साइंस पॉपुलराइज हो रही है, इसका फ़ायदा क्या होगा हम लोगों के लिए, उसको उनको तरफ देखना चाहिए। इसको बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने बहुत एक अच्छे शब्दों में बोला था कि एक नए पैदा हुए बच्चे का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक हम उसको खिलाए पिलाएंगे नहीं, उसके अंदर नॉलेज नहीं डालेंगे तो उसका भी कोई यूज़ नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग अगर साइंस को प्रोग्रेस करवाना है, साइंस को पॉपुलराइज करवाना है, तो दोनों तरफ से, सोसाइटी और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से ये पहल तो हो ही रही है, लेकिन उनका आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और खाली गवर्नमेंट से पैसा दिया जाए और वहाँ पॉपुलराइजेशन नहीं हो रही है, वो भी नहीं होना चाहिए। तालमेल का एक सिरा आप लोगों से भी जुड़ता है, आप NGOs में चलाते हैं और उसके ज़रिए आप लोगों में अवेयरनेस जगाते हैं। आप लोग किस तरह से काम करते हैं अवेयरनेस के लिए? हम लोग एक NGO हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट से कोई ग्रांट नहीं लिया। हम लोग सेल्फ सस्टेनिंग NGO की तरह काम करते हैं। स्कूलों में वर्क करके हम लोग बच्चों में एस्ट्रोनॉमी के थ्रू हम लोग साइंस उनमें जागृत करने की कोशिश करते हैं। और एक तो होता है कि खाली साइंस को उनको पढ़ाना, और दूसरा उनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में साइंस में वो खुद कुछ कर पाएँ, जिसको आजकल हम लोग सिटीजन साइंस प्रोग्राम बोल रहे हैं। तो उसमें पिछले 4 सालों में हम लोगों ने US की एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके 7वीं से 8वीं क्लास के बच्चों ने खुद रियल टाइम में डेटा जो है टेलीस्कोप को यूज़ करके उन्होंने अब तक करीब 10 नए एस्ट्रॉयड्स डिस्कवर कर लिए, जो अपने आप में बच्चों को साइंस के साथ जोड़ने का एक हमारा सिलसिला है। तो उससे उनमें इतनी उत्सुकता जाग गई है कि वो लोग चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में एस्ट्रोनॉमी को एज ए करियर। सिटीजन साइंस की भी बातें मैं सुनती रही हूँ, ये किस तरह से काम कर रहा है और कैसे जो नॉर्मल मतलब जो कॉमन लोग हैं वो भी साइंस या एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड या तारों और अंतरिक्ष से रिलेटेड जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। इसमें सीधी सी बात यह कि जो एक आम नागरिक जिसको साइंस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ समय है या उसके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जिसको हम लोग कंप्यूटिंग बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें डेटा तो कितनी ही ऑब्जर्वेटरीज के पास है, लेकिन वो लोग उसको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, नहीं एनालाइज कर पा रहे, बिकॉज उनके पास इक्विपमेंट की कमी है। लेकिन लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं जिसमें उनकी कंप्यूटेशनल पावर जो है वो यूज़ नहीं होती है जी। तो उस डेटा को वो लोगों को भेज के उनसे एनालाइज करवा के वापस उस डेटा को जब दोबारा देते हैं, तो उसमें कितने सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। एक ऐसा सेटी प्रोजेक्ट है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, जिसमें बाहर की दुनिया में लोग कैसे ढूंढ सकते हैं, वो हो रही है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा चंद्रभूषण जी, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि जो नए लोग प्रोग्राम्स देख रहे हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस फैलाना एक बड़ा मकसद हो सकता है, इसलिए मैं इस कॉलर को या इनको लेना चाहती हूँ। बेगूसराय बिहार से निखिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी निखिल, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, पहले तो धन्यवाद आप लोगों को भी इसरो के साथ साथ कि हमारे मतलब ग्रामीण तक आप लोग पहुंचा रहे हैं सारा डिटेल्स। आप लोग देख रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। तो क्वेश्चन ये है कि इसरो से जो हम लोग ये जो स्पेस में अपना भेज रहे हैं मंगलयान, तो मंगल ग्रह के स्पेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बुरा प्रभाव, ये बताइए। मंगल ग्रह पे हमारे इस मिशन का क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? हाँ, आप कुछ बताना चाहेंगे? मंगल पे बुरा प्रभाव पड़ेगा या हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ने जा रहा है? हमारे पे अच्छा पड़ेगा और मंगल पे भी अच्छा पड़ेगा। मंगल हम ये है जैसे कि कल को पोल्यूशन हम वहां जाके करें, कुछ करें, तो वो एक, बाकी मंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो फिर वही बात है जो हमारी मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं के साथ ये चीज जुड़ी हुई है कि हम वहां जाके क्या प्रभाव करेंगे या वो हम पर क्या प्रभाव करेगा। अगर हम ये देखें कि मंगल एक धरती है, एक जैसे धरती है, और जैसे हम चंद्र पर गए, जैसे हम इस धरती पर रहते हैं, वैसे अब हमने वहाँ
यान भेजा और हम उसका अध्ययन मैं निखिल को एक जवाब जरूर देना चाहूंगी। निखिल, ये कोई पहला अभियान नहीं है। दुनिया ने इस तरह के 51 अभियान चलाए हैं सैटेलाइट भेजने के, जिसमें 21 बार सफलता भी हासिल हुई है। तो ये कोई पहला अभियान नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के मार्स रोवर भी जा चुके हैं और कई तरह के सैटेलाइट्स भी जा चुके हैं, जो तस्वीरें भेज चुके हैं, जो तमाम तरह के अध्ययन भेज चुके हैं। इसलिए ये कोई पहला अभियान नहीं है। लेकिन हाँ, पहली बार में सफल हुआ पहला अभियान इसे कह सकते हैं और एशिया में ये सफल हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के सिर्फ 4 देश इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सके हैं, उसमें से चौथा नाम हमारा है। ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये इन उपलब्धियों को का जो दायरा है ये ज्यादा बड़ा है बनिस्बत ये कहने के कि हम जो है मार्स पर उसका कोई नुकसान करने जा रहे हैं। दरअसल हम मार्स का अध्ययन करने जा रहे हैं और जिस दिन मार्स के बारे में हमें ज्यादा पता चल सकेगा, शायद उस दिन हमारी तमाम जिज्ञासाएं और हमारे बहुत सारी जरूरत की चीजें आसान हो जाएंगी। मैं यही डेटा के बारे में जो कलेक्शन और उसकी एनालिसिस के बारे में बात कर रहा था। ये 6 महीने तक डेटा आएगा, ये बरसों तक एनालाइज होगा जी। और इसकी एनालिसिस की एक चीज नहीं है। इसी के लिए मैं ये कह रहा था कि ये डेटा बहुत सारी एजेंसीज को अवेलेबल होना चाहिए और हर एजेंसी क्या ये डेटा सभी एजेंसीज को अवेलेबल कराया जाता है या केवल इसरो इसका अध्ययन करता है? ये शेयर होता है साइंटिफिक एजेंसीज में, ये इस एरिया को शेयर करता है। मैं शायद इनको कह रहा था कि हो सकता है एक अच्छा डायरेक्ट आउटपुट ऐसा हो कि 10-20 PhDs इस डेटा में से निकलें और वो हमारी अंडरस्टैंडिंग मार्स की और बढ़ाएं और इससे हमारी एजुकेशनल सिस्टम जो है स्कूल से लेके कॉलेज तक। मैं तो चाहूंगी कि आप प्रोफेसर हैं तो आप लोग इस तरह की इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्टूडेंट्स के अंदर जगाइए ताकि और ज्यादा रिसर्च हो, PhD हो और ज्यादा जानकारियां लोगों को मिले। ठीक कह रहे हैं, जैसे इन चंद्रभूषण जी ने कहा था अभी, मैं भी एक आध स्कूल में गया हूँ, बच्चों ने एस्ट्रॉइड ढूंढे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्यूरियोसिटी जागने के लिए। आई एम वेरी श्योर कि आज इससे काफी बच्चे प्रेरित होंगे इस एरिया में जाने के लिए। नहीं, लेकिन आप प्रोफेसर हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हाँ। क्या आप इस बात का आज, क्योंकि आप बहुत सारे रिसर्च भी कराते होंगे, कुछ रिसर्च स्कॉलर जरूर आपके अंडर काम कर रहे होंगे, क्या आप उन्हें प्रेरित करेंगे कि ये जो डेटाज आज मंगल की तरफ से आ रहे, मंगलयान की तरफ से आ रहे हैं, उन डेटा के एनालिसिस के जरिए भी वो अपना रिसर्च पूरा करें? ये काम होगा। आप सुनिएगा, अगर सर्न का एक्सपेरिमेंट सुना ना आपने, सर्न में इससे हजारों गुना डेटा आ रहा है और वो हमारे यहाँ भी आता है, हम लोग भी एनालाइज, तो ये इंटरनेशनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसा नहीं है। इवन नासा को ये डेटा जा रहा है जी, तो ये डेटा एनालाइज करने में बहुत, ये कैसे सुपर कंप्यूटर और कैसे वेब बना, क्योंकि सर्न का डेटा इतना था कि डाइजेस्ट करना मुश्किल, तो उन्होंने सब एजेंसीज को, हमारे यहाँ PhD कर रहे हैं उसी डेटा को लेके एनालाइज। मुझे थोड़ा सा ये बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि डेटा एनालिसिस किया कैसे जाता है, उसका प्रोसेस क्या है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है आपका, तो इसका कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं मैं बता सकता। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, मनीष औरंगाबाद से। मनीष, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ मैडम, पहले कांग्रेचुलेशन करूंगा साइंटिस्ट के लिए जी। और मेरा सवाल था, मतलब जैसे अभी यान तो चला गया है, हाँ, फिर ये अपने कम्युनिकेशन पे कैसे इफेक्ट करेगा? मतलब जैसे मोबाइल में नेट जल्दी नहीं पकड़ता है, टावर रेंज भी बहुत स्लो रहती है, तो ये इफेक्ट कैसे करेगा अपने कम्युनिकेशन पे? कम्युनिकेशन के लिए ये काम नहीं करेगा। ये वैज्ञानिक जानकारियों को बढ़ाने वाला अभियान है। ये कम्युनिकेशन के लिए जो काम करने वाले सैटेलाइट्स हैं वो अंतरिक्ष में अभी हैं और बहुत सारे, आप तो कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े रहे हैं, आप इनको बताइए इनके सवाल का जवाब क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एक्चुअली हमारे देश में हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया 1975 में। उस वक्त हमारे पास सैटेलाइट भी नहीं था, हमने सैटेलाइट अमेरिका से मांग के 1 साल के लिए उसका ये जो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग आज हम इतना कॉमन हो गया है वो वहाँ से शुरू किया और उससे बढ़ते बढ़ते वो फिर ग्राउंड सेगमेंट्स, इंटरनेट बढ़ते हुए ये हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हम पूरे देश से वीडियो ले सकते हैं, ऑडियो ले सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। छोटा सा ऐड करना चाहूँगा यहाँ, ये जो मिशन है, ये मिशन ऐसा नहीं कि 2 साल में बना। ऐसे मिशन में क्या सेंसर्स हैं, स्पेशल कंपोजिट बनाए जाते हैं, बॉडी अलग अलग अलॉयज बनाए जाते हैं ये, और ये जो स्पेस रिसर्च है ना, ये हम लोगों को फंडिंग भी देता है यूनिवर्सिटीज़ में। हम लोग उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हैं और उसको टैकल करते हैं। तो इसमें एक नहीं, कम से कम सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली, जो कि इनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं और इट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ दैट एफर्ट।
नहीं, लेकिन उन दर्शक का सवाल ये था कि उनका मोबाइल नेटवर्क अगर नहीं पकड़ता, लेकिन इसका कोई संबंध नहीं है। विज्ञान से इसका संबंध है, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल होने जा रही है? मतलब आपके फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स को क्या मिलने जा रहा है इस तरह के? सबसे बड़ी बात है कि हम एनवायरमेंट जो है मार्स का, जो 5 जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। देखिए मार्स के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हमें अगर वहाँ पानी की और मीथेन की प्राप्ति होती तो इससे हमें ये जरूर पता लगता कि लाइफ होने के चांसेस हैं, और इसके 50% से ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरा, अगर उसके मिनरल वेल्थ के बारे में हमें पता लगने जा रहा है। एक सेंसर है जो कि सिर्फ फोटो लेगा उसकी, और उससे ये पता लगेगा कि हमें हाइड्रोजन है यहाँ। अगर हाइड्रोजन है तो पानी भी है, पानी है तो मीथेन भी है। तो ये साइंटिफिक डेटा जो है ये बड़ा क्रूशियल है, और ये अगर हो जाएगा तो मार्स के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। मैं दूर की कौड़ी की एक बात बताऊं आपको, क्यों इतना एम्फेसिस दिया जा रहा है। आफ्टर ऑल अंटार्कटिका का, मैंने आपको कहा अंटार्कटिका का अब हम कुछ खास नहीं सुनते उसके बारे में। हर कंट्री ने वहाँ झंडा भी लगा दिया, कुछ हम लोगों ने मिनिस्ट्री बना दी, पर वो वहीं का वहीं है। इमीडिएट गेन कुछ नहीं हुआ। आज ये हो सकता है, मैं दूर की बात अपनी इमेजिनेशन बता रहा हूँ कि धरती पे पॉल्यूशन और इतना कुछ हो रहा है, आप देख रही हैं क्या क्या आपदाएं आ रही हैं, देख रहे हैं ना सब आप। बिलीव मी, इस टाइम में काम कि लोगों को ये धरती पे रहना मुश्किल हो जाए। इन दैट केस एडवांस कंट्री में दे स्टार्ट सिविलाइजेशन समवेयर एल्स। नहीं, लेकिन वो तब होगा जब वैज्ञानिक इस क्षेत्र में सफलता हासिल कर लेंगे और अपनी तरफ से प्रूव कर देंगे। आज तक, अभी तक के जो वैज्ञानिक सवाल हैं वो दूसरे ग्रह पर किसी भी जीवन की संभावना नहीं बताते हैं। हाँ, ये संभावना बताते हैं मगर प्रूफ नहीं बताते हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी संभावना निकलेगी और या कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंगलयान के इस सफर और मंगलयान की उपलब्धि पर हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी।